Assalamu alaikum and a very good evening to the speaker of the day, Mr. Shoaib Siddiqui sir, the panelists and also the students, parents who have just started joining the session. Let us wait for the other attendees to join. Till then, let us watch a video showing AMP's journey since the past 14 years. Thank you, Aisha. I, Mrs. Sadiqa Banu, the host for today's session on the topic Careers in Civil Services, take the privilege to begin the session. Respected attendees, before handing over the session to the speaker, I would like to introduce you all about AMP, its mission, vision, and its achievements. I request Ms. Aisha to run the PPT. AMP stands for the Association of Muslim Professionals. AMP is a non-profit registered in India, USA, UK, and Australia. AMP has completed its 14 years serving our community in the field of education, employment, and empowerment. AMP's missions. AMP is to empower the underprivileged for the greatest benefit of the society in general and nation as a whole. AMP's vision. AMP has a very broad vision to positively impact lives of 10 million people by 2030. AMP flagship projects include the Employment Assistance Cell, the Employability Training Program, the AMP Zakat Fund, the AMP PowerJobs.com, the IndiaMentors.com, etc. AMP's flagship projects. SDP is one of the most important flagship project of AMP. Today's session on careers in civil services is the 8th session among the 12 career guidance lectures arranged by the AMP for the students of the grade 10 and 12. Under the SDP, that is Skill Development Program, we connect with multiple schools and arrange the skill development lectures on regular basis. We also conduct parenting workshop and teachers training workshop. Also under this school development program, we also conduct the NTS, that is National Talent Search Examination in the month of November for the schools, junior and senior college students. The objectives of conducting this examination
increase and reward the students' general awareness and identify the brightest student to support and nurture them. We also reward the winners with cash prizes. Students, you can also register yourself for this NTS examination on the AMP mobile app, that is Champion. Through this app, AMP intends to keep every Indian student connected. In future, this app can be downloaded from the Play Store. Not to forget that through this app, students are benefited by AMP's numerous programs like career counseling, scholarship guidance, employment training, financial assistance for higher education, and for guidance to admission in foreign university. This is the brief about AMP's visions, missions, achievements, and also its flagship projects. Today, we have amidst us Mr. Shoaib Siddiqui, the speaker on the topic Careers in Civil Services. Mr. Shoaib Siddiqui, he is a chairman, Kavish Foundation, Aurangabad. He is speaking on career guidance in UPSC Civil Services for the last 10 years. He is in Civil Service career guidance for the last 10 years. So we are very happy and privileged to have you as the speaker for today's session. I, on behalf of all the core team members of AMP, extend a warm welcome to you, sir. Before handing over the session to the speaker, I would like to inform the attendees to post their doubts regarding the session in the Q&A box. The relevant questions will be answered by the speaker at the end of the session. Over to you, sir. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं अपना तारुफ करा दूं पहले थोड़े से शॉर्ट लिस्ट के अंदर। मेरा नाम मोहम्मद शोएब सिद्दीकी है। काविश फाउंडेशन औरंगाबाद में पिछले 10 साल से यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए अवेयरनेस गाइडेंस का काम कर रहा है। इसका मैं फाउंडर भी हूँ। और 10 साल में काविश फाउंडेशन ने जो कोशिशें की है, अल्हम्दुलिल्लाह उसके तौफीक में अल्लाह ताला ने काविश फाउंडेशन के 2 स्टूडेंट को 2018 में, काविश फाउंडेशन में 2012 से काम कर रहा है। हमारा पहला रिजल्ट 2017-18 में आया है। इसमें शेख सलमान पटेल और मोहम्मद नूर सिद्दीकी यूपीएससी क्वालिफाई हुए हैं। दोनों का केडर IRS है। प्रेजेंट दोनों की एक मध्य प्रदेश ग्वालियर के अंदर एज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है मोहम्मद नूर सिद्दीकी। शेख सलमान पटेल आसाम में गुवाहाटी में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इसके अलावा काविश फाउंडेशन के 2 स्टूडेंट जिन्होंने यूपीएससी के इंटरव्यू तक क्वालिफाई किया था, अनफॉर्चुनेटली वो क्वालिफाई नहीं हो सके, लेकिन सर आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है अभी। आप थोड़ा वो जो स्पीकर है ना उसको करीब पकड़ लें तो बेहतर होगा। ये ठीक है? अभी ये तो ठीक था। अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही है। हाँ मैंने आवाज लो किया था असल में। ठीक है, अब कम हो गई है फिर? आवाज फिर कम हो गई है जी। हेलो। हाँ वो हाँ ठीक, हाँ वो करीब पकड़ लें तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। हाँ ठीक है। तो काविश फाउंडेशन जो औरंगाबाद में ये काम 10 साल से कर रहा है, इसके 2 स्टूडेंट क्वालिफाई हुए अल्हम्दुलिल्लाह। 2 ने इंटरव्यू तक क्वालिफाई किया था। 10 से करीब बच्चे हमारे यूपीएससी का मेंस एग्जाम लिख चुके हैं और लगभग 150 बच्चों ने जो है तो प्री एग्जाम दिया है। और अभी जो 5 जून को यूपीएससी का प्री एग्जाम हुआ था, इसमें हमारे 45 स्टूडेंट ने हिस्सा लिया था। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इनको मेंस के लिए क्वालिफाई करे। मैं यूपीएससी सिविल सर्विस के ताल्लुक से जो नॉलेज देना चाहता हूँ वो ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टूडेंट को मालूम है, लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा हमारे पास हो रही है वो यूपीएससी की मालूमात सही सिमत में जाने के बजाय गलत सिमत में जा रही है। बहुत सारे बच्चों को, स्टूडेंट को मालूमात तो है लेकिन वो गलत मालूमात होने की वजह से हमारे पास जो मसाइल आते हैं उसमें सबसे बड़ा ये होता है कि हमारे बच्चे यूपीएससी का सिलेबस समझ नहीं पाते हैं। अक्सर बच्चे ये होते हैं कि वो उनको
यूपीएससी की तैयारी जिस सिस्टम से करना चाहिए उसके बजाय वो ऊपर से आने की कोशिश करते हैं, तो इससे ज़्यादा नुकसान होता है। नुकसान इन द सेंस कि बच्चे चाहते हैं कि हमको पहले प्री जो है एग्ज़ाम पास करना रहता है, तो हम तैयारी करना चाहते हैं मेंस की, मेंस में भी हम ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं। तो ये गलत मालूमात होने की वजह से बहुत बड़े पैमाने पे स्टूडेंट का नुकसान हो रहा है। तो मैं अपने सुनने वालों को ख़ास तौर से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि वो यूपीएससी का एग्ज़ाम अगर क्लियर करना चाहते हैं, यूपीएससी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसको सिस्टम से आइए बराबर। नीचे से अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, कम वक्त में हमारे बच्चे जो है तो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकेंगे। यूपीएससी के पैटर्न के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो यूपीएससी के तीन स्टेप्स होते हैं। पहले प्री होता है, जो प्री क्वालिफाई करने के बाद मेंस होता है, मेंस क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू या पर्सनल टेस्ट जो रहता है, पर्सनली टेस्ट जो रहता है वो देना पड़ता है। अब ये तीनों का तरीका अगर ये है कि अब जो पिछले 5 जून को जो यूपीएससी का प्री एग्ज़ाम हुआ है, तो लगभग 10 लाख बच्चों ने इसको फॉर्म भरा था इसका, लेकिन सेंटर के ऊपर 48% स्टूडेंट आए हैं, यानी 4,80,000 के करीब स्टूडेंट आए हैं। और ये 4,80,000 स्टूडेंट में से भी मोस्टली 10% ही ऐसे रहते जो सिंसियर होते हैं। तो ये क्वांटिटी नज़र आती है हमारे को कि इतने बहुत से स्टूडेंट है, 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, 5 लाख के करीब बच्चे सेंटर के ऊपर आए एग्ज़ाम देने के लिए, और सीट तो बमुश्किल 700 रहती है, 800 रहती है, कभी 1000 रहती है। अभी जो लास्ट रिजल्ट आया है अभी 10-12 दिन पहले, तो उसमें मुश्किल से 685 सीट थी। एग्ज़ाम देने वाले तो 4-4.5 लाख थे। तो ये गलतफहमी जो फैली हुई है ख़ासतौर से मुस्लिम स्टूडेंट के अंदर, तो उनको ये बात में ध्यान में रखना चाहिए कि एक्चुअली जो स्टूडेंट रहते हैं 4 लाख 5 लाख में, इसमें सिंसियर मुश्किल से 30 से 40,000 होते हैं। और ये 30 से 40,000 के लिए 1,000 सीट रहती है या 700-800 सीट रहती है, ये क्वालिफाई होना कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर ये डर खौफ निकल जाए कि हम भी इसको एग्ज़ाम को पास करते हैं। बस सिस्टम से तरीके से अगर आते हैं तो ये क्वालिफाई होता है एग्ज़ाम, वरना आप इसको छोड़ पकड़ करेंगे, कभी स्टडी करेंगे कभी छोड़ देंगे, तो इससे क्वालिफाई नहीं हो सकते। हमारे पास आमतौर पे ये होता है कि बहुत सारे बच्चे यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी तो करना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश तो होती है कि वो आईएएस आईपीएस बने, लेकिन वो सिस्टम में आना नहीं चाहते हैं। उनका बहुत सारा वक्त ऐसे स्टडी में चला जाता है जिससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होता है। मिसाल के तौर के ऊपर मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम स्टूडेंट ये करती है कि वो कोचिंग क्लास ज्वाइन ही नहीं करती है। वो चाहती है कि उनको यूट्यूब पे, नेट पे या कुछ मैगजीन्स में इसके ज़रिए से कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाए जिससे वो ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ले। तो ये नामुमकिन है, इसके चांसेस 1% भी नहीं रहते हैं। और इसकी वजह से दो चीज़ें का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, ख़ासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, कि हमारे पास जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं 3, 4, 5 अटेम्प्ट हो जाते हैं, जब क्वालिफाई नहीं होते हैं तो उनके पेरेंट्स ये सोचते हैं या उनके फ्रेंड सर्कल में, दोस्त में, जानने वाले में, देखिए ये बच्चा तो 4-5 साल से कोशिश कर रहा है, एग्ज़ाम दे रहा है यूपीएससी का, लेकिन क्वालिफाई नहीं हो रहा है, हो सकता है इसके साथ तासुब हो रहा हो। ऐसी कोई बात नहीं है, तासुब हो ही नहीं सकता यूपीएससी में, क्योंकि यूपीएससी का तरीका कुछ इस तरीके का है कि तासुब के इसमें चांसेस ही नहीं रहते हैं। हाँ, हम अगर सिस्टम से नहीं आते हैं तो इस वजह से क्वालिफाई नहीं होते हैं, ये ज़्यादा वजह है इसकी। तो मैं अपने सुनने वालों को, खासतौर से स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को गुजारिश करूँगा कि पहले आप यूपीएससी करना चाहते हैं तो पहले आप ज़हनी तौर के ऊपर इसको तैयार हो जाए कि आपको यूपीएससी करना है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। और बहुत सारी चीज़ें छोड़ने में सबसे नंबर 1 के ऊपर जो आता है हमारा सोशल मीडिया, जो आजकल चल रहा है। ये सोशल मीडिया की वजह से हमारे को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। हमारे स्टूडेंट्स का ज़्यादा वक्त इसी में जाता है, जिसकी वजह से वो सही तरीके से यूपीएससी के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये रहता है कि हमारे पास प्लानिंग नहीं होती है। 24 आवर्स का टाइम टेबल हमारे स्टूडेंट बनाते ही नहीं है कि वो कब सोएंगे, कब उठेंगे, स्टडी कब करेंगे। स्टडी में सबसे नंबर 1 के ऊपर जो चीज़ आती है न्यूज़पेपर की रीडिंग करना। तो कभी कभी बच्चे तो 1-1 हफ्ता न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं करते हैं, जिसके नतीजे में जनरल नॉलेज उनकी बढ़ती नहीं है। उनकी बहुत सारी नुकसान उसमें ये होते हैं कि जो सब्जेक्ट है यूपीएससी के स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसकी मालूमात बहुत ज़्यादा आपको न्यूज़पेपर में मिलती है। ऑलमोस्ट न्यूज़पेपर के ज़रिए 30 से 40% क्वेश्चन आते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग करने से। अब न्यूज़पेपर रीडिंग जो बच्चे करते हैं, तो कोई कहता है कि न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है, तो बहुत सारे बच्चे समझते हैं न्यूज़पेपर द हिंदू पढ़ना चाहिए। हालांकि उनको बेसिक नॉलेज जब तक होता नहीं है यूपीएससी का,
वो हिंदू पेपर पढ़ के उनको कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो सबसे पहले यूपीएससी तैयारी करने वालों ने अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए। तो टाइम टेबल ना होने की वजह से बहुत बड़े मसाइल होते हैं। नंबर 2, हमारे पास जो गलत मालूमात होती है उसको दुरुस्त करना चाहिए। सरपरस्तों से मेरी सबसे पहले ये गुजारिश है कि अगर वो अपने बच्चों को यूपीएससी एग्ज़ाम की तालीम दिलाना चाहते हैं या कलेक्टर कमिश्नर जैसे बावकार ओहदों पर फायज करना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले बच्चों की तालीम पे जो खर्च करने का है, जो अखराजात हैं, उसका इंतज़ाम करना चाहिए। हम गुज़िश्ता 10 साल से देख रहे हैं कि जो बच्चे आते हैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, बच्चे तो काबिल भी होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, हमारे किसी भी एनजीओज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वालिफाई भी हो जाते हैं, लेकिन जब उनको उनके ऊपर खर्च करने की बात आती है तो वहाँ पर माँ बाप या पेरेंट्स रुक जाते हैं। वो पहले से ही इस सिलसिले में कोई प्लानिंग नहीं करते हैं, तो उसका असर बच्चों की तालीम पे पड़ता है। फिर बच्चा डिसकंटिन्यू हो जाता है या फिर उसके पास असबाब नहीं होने की वजह से वो सोचता है कि अब मैं इसको छोड़ दूँ। तो सरपरस्तों से मेरी पहले ये गुजारिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ये प्लानिंग करें कि हम अपने बच्चों को, चाहे वो कोई भी तालीम दिलाए, अगर उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि पहले वो उसके 3 से 5 साल का खर्च का बंदोबस्त करें। उसके अखराजात जो आने वाले हैं, महीने को जो उसका खर्च आता है, उसका बंदोबस्त अगर करके रखते हैं तो बच्चों को ज़हनी तौर पे बहुत इत्मीनान रहता है कि मेरे सरपरस्त, मेरे पेरेंट्स, मेरे वालिदैन मेरे पीछे है, मुझे इस सिलसिले के अंदर बहुत ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है हमारे पास जो बड़ा मसला है कि वालिदैन में भी और बच्चों में भी सब्र की बहुत कमी है। मुस्तकिल मिजाजी नहीं होती, संजीदगी नहीं होती, सब्र नहीं होता, जिसकी वजह से बच्चे चाहते हैं कि जल्द से जल्द 1 या 2 साल के अंदर, या बहुत होगा तो 3 साल में, पहले दूसरे अटेम्प्ट में इसको क्वालिफाई कर ले। ये बहुत मुश्किल काम है। अगर आपको पहले दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में यूपीएससी क्वालिफाई करना है तो आपको उसके लिए 10th से ही यूपीएससी की तैयारी शुरू कर देना चाहते होनी चाहिए। लेकिन अवेयरनेस का मामला ये है कि हमारे पास मुस्लिम बच्चों में, हमारे मोहल्लों में या जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ का माहौल इस किस्म का होता ही नहीं कि ये बच्चों को यूपीएससी के ताल्लुक से कुछ गाइडेंस मिल सके। अक्सर ये होता है कि जब कोई पेरेंट्स, जैसा मैं अपनी मिसाल लूँगा, जब मैं आज से 10 साल पहले यूपीएससी की मालूमात लेने के लिए जब निकला था मैं, तो मुझे इंतहाई गुमराहकुन मालूमात दी गई थी, मिस गाइड किया गया था कि बहुत मुश्किल है, बहुत महंगा है और हमारे साथ पार्शलिटी होती है। लेकिन मैंने 8-10 महीने में जब इस सिलसिले में 10 साल पहले जब इसकी इंक्वायरी की, दिल्ली, बॉम्बे, पूना वगैरह में जाकर बहुत बड़े बड़े एनजीओ से बोला, बहुत इसमें इस फील्ड पे रहने वाले काफ़ी लोगों से जब मैंने मुलाकात की, तो पता चला कि यह एग्ज़ाम ना मुश्किल होता है, ना महंगा होता है, ना तासुब होता है। हमारी मालूमात की कमी सबसे बड़ी वजह है। दूसरी वजह यह होती है कि हम इस एग्ज़ाम में तैयारी से बैठते ही नहीं हैं। जब तैयारी से नहीं बैठते हैं तो ज़्यादा बात, जाहिर बात है, जो बच्चे ज़्यादा तैयारी से बैठते हैं वो आसानी से कामयाब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा परफॉर्मेंस के ऊपर असर भी पड़ता है और हमारा परसेंटेज हमेशा 2-3%, बहुत होगा तो 4% तक दिखता है। एवरेज हमारा परसेंटेज 3.5 है। गुज़िश्ता 7-8 सालों के अंदर निकाले तो एक ही बार ऐसा हुआ है कि पिछले 5 साल में 5.7% गया है हमारा। लेकिन इसके पीछे जो वजूहत है, अगर हम उसको सोचे तो इसमें एग्ज़ाम में बैठने वाले जो बच्चे होते हैं, खुसूसन मुस्लिम बच्चे, इनकी तादाद इंतहाई कम होती है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि पिछले 5 से 7 सालों का जो रिकॉर्ड मेरे पास है, जिससे मैंने ये निकाला है, एनालिसिस किया है, तो एवरेज हमारे पास जो 4,80,000 बच्चे सेंटर पे बैठे एग्ज़ाम देने के लिए पहुंचते हैं प्री का, उसमें बमुश्किल 4,000 बच्चे मुस्लिम होते हैं। अब गौर कीजिए कि जब 4,000 बच्चे होते हैं तो भी हमारा उस वक्त भी 50-51 बच्चे क्वालिफाई होते हैं। 51 से 50 बच्चे लेट 51 से 51 स्टूडेंट क्वालिफाई होते हैं। अगर आप इसी जगह 4,000 की जगह 40,000 बैठेंगे तो 150 बच्चे तक क्वालिफाई हो सकते हैं। तो इसमें हमारी शिरकत की कमी की वजह से हमारा रिजल्ट हमेशा कम दिख के आता है। वरना परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो दूसरे बिरादरानी वतन के मुकाबले में दूसरे बिरादरानी वतन का जो एवरेज है पास होने का वो 2% है, लेकिन हमारा परसेंट जो है 2.5 है। ये यूपीएससी खुद कहता है, सेचर कमेटी की रिपोर्ट जो पिछले 10 साल पहले आई थी उसके अंदर खुद ये बताया गया है
कि दूसरे बिरादरान वतन के मुकाबले में मुसलमान जो है तो यूपीएससी के अंदर कम पास होने की बुनियादी वजह उनकी शिरकत की कमी है। इसमें वो हिस्सा ही नहीं लेते। जब हिस्सा नहीं लेंगे तो जाहिर बात है इतनी कम तादाद में हिस्सा लेते हैं कि नतीजा दिक्कत नहीं आता है। एक तो ये वजह होगी कि तादाद कम होने से हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। और आगे क्या होता है कि एग्ज़ाम की तैयारी के सिलसिले में जो हमें बेसिक चीज़ चाहिए, एक अच्छा गाइडेंस सेंटर चाहिए। तो बमुश्किल आपको, अगर आप देखेंगे किसी भी बड़े से बड़े शहर में चले जाइए, हमारा गाइडेंस सेंटर, अवेयरनेस सेंटर या यूपीएससी की मालूमात के ताल्लुक से कोई ऐसा इदारा नज़र नहीं आता है कि जो बच्चों को अवेयरनेस पैदा कर सके, उनके जहन में से खौफ डर निकाल सके। ये सबसे बड़ी वजह है। अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल पहले जब हमने इस काम को शुरू किया था तो बमुश्किल हमारे पास 5, 7, 10 बच्चे आते थे, लेकिन धीरे धीरे ये मामला बढ़ता गया। रिजल्ट आने के बाद तो हमारे पास अच्छी खासी तादाद आने लगी इस सिलसिले में। लेकिन बुनियादी जो वजह आ रही है वो यही आ रही है कि इसमें हमारे पास टाइम टेबल का जो रहता है कि हम किस तरह सही टाइम का इस्तेमाल करके इसको करें। दूसरा फाइनेंस का मसला आता है। तो ये दोनों वजह से बच्चे आते तो है, लेकिन बीच में से ही इसकी कोचिंग या गाइडेंस सेंटर जो है छोड़ देते हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह है। तो मैं फिर से पेरेंट्स से गुजारिश करना चाहूँगा, या जो बच्चे इस पर इंटरेस्ट रखते हैं, कि पहले आप अपना टाइम टेबल बनाइए और आगे जो ज़रूरत आपको होने वाली है, ख़ास तौर से आपको स्टेशनरी लगने वाली है, बुक्स लगने वाली है, और आपको जो पैसों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप किसी भी छोटे शहर के अंदर ज़्यादा प्री एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए तो आपको दिल्ली ही जाना पड़ता है। और दिल्ली में बेशुमार NGOs है, जिसमें जामिया मिल्लिया इस्लामिया है, जामिया हमदर्द है, ज़कात फाउंडेशन है, हमदर्द स्टडी सर्कल है, सर सैयद है, और भी कुछ ऐसे इदारे हैं, NGOs है, यूपीएससी की फ्री कोचिंग देते हैं। लेकिन उनका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू होता है, वो बच्चे हमारे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं ज़्यादा, क्योंकि वो यूपीएससी की जो कोचिंग होती है वो बराबर सिस्टम से हासिल नहीं करते। ये वजह से वो वहाँ तक हमारे बच्चे पहुँच नहीं पाते हैं, जबकि वहाँ पर सीट रिजर्व है माइनॉरिटीज़ के लिए, लेकिन वो ये सिलेक्शन ना होने की वजह से दीगर बिरादरान वतन को मिल जाती है। ये भी एक वजह है कि हमारा रिजल्ट कम आता है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि जहाँ पर कोचिंग सेंटर होते हैं वहाँ पर फैकल्टी बहुत अच्छी नहीं होती है। फैकल्टी आमतौर के ऊपर जो फैकल्टी होती है उनको यूपीएससी के पैटर्न के बारे में मालूमात बहुत कम होती है। तो पहले अगर फैकल्टी अच्छी मिल जाए, या फैकल्टी में से कुछ स्टूडेंट जो फैकल्टी रहती है वो अगर यूपीएससी के ही स्टूडेंट रहते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। आमतौर पे हमारे पास देखते हैं हम कि हमारे पास जो कोचिंग सेंटर चलते हैं वो रिटायर पर्सन वहाँ आके पढ़ाते हैं। उनके लिए यूपीएससी या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो 30-35 साल पुराने हो चुके होते हैं, और आज के हिसाब से जो यूपीएससी चाहता है, जो यूपीएससी का डिमांड है, उस हिसाब से तालीम नहीं होती पाती। तो इसके ऊपर भी गौर करना चाहिए कि आप अगर किसी कोचिंग सेंटर में ज्वाइन करना चाहते हैं या कोई कोचिंग सेंटर के बारे में आप कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं तो ये बात ज़रूर गौर देख लीजिए। पेरेंट्स से मैं गुजारिश करूँगा कि वो कोचिंग सेंटर कितने साल से चल रहा है, वहाँ की फैकल्टी कैसी है, और फैकल्टी क्या यूपीएससी के या और भी दीगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ताल्लुक से कितनी बेदार है या उनको कितना आइडिया है। ये चीज़ अगर अच्छी तरीके से आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर आप अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर इंस्टीट्यूट में दाखिल कर सकेंगे। इसके अलावा मैं अगर यूपीएससी का पैटर्न अगर समझाने जाऊँ तो कुछ पैटर्न कुछ इस तरीके का होता है कि यूपीएससी के 3 स्टेप्स होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो प्री के अंदर आपको यूपीएससी के 2 पेपर होते हैं। पहला एमसीक्यू होता है, उसके बाद में दूसरा होता है सीसेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जो क्वालिफाइंग होता है। इसमें आपको 66% मार्क्स लेना कंपलसरी है। अगर 66 से आप कम नंबर लेंगे तो क्वालिफाइंग पेपर में अगर आप फेल होते हैं तो आपका समझ लीजिए आप क्वालिफाई नहीं हुए। फिर एमसीक्यू का जो रहता है फर्स्ट पेपर, उसके अंदर तो कट ऑफ हमेशा अलग अलग आता है। उस कट ऑफ में भी जो है तो अक्सर ये होता है कि हमारे बच्चे उस कट ऑफ के बहुत करीब पहुंचने के बाद भी हिम्मत हार जाते हैं। इस वक्त पेरेंट्स को या वो जो जिम्मेदार है, जो एनजीओज के जो जिम्मेदार है, उनको चाहिए कि वो बच्चों की तरफ तवज्जो भी रखे, उनकी हिम्मत अफजाई भी करता रहे कि भाई अभी तो आपने पहले ही अटेम्प्ट दिया है, अभी आप बहुत करीब पहुंचे थे, लेकिन जैसा जैसा बच्चा करीब पहुंचता है कट ऑफ के, ये हमेशा हो रहा है। मैं पिछले कई साल से गौर कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कट ऑफ किसी साल का 90 है और हमारा स्टूडेंट जो है तो 90 की बजाय 84, 85, 86 तक नंबर ले लेता है,
तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ये आखिर के जो 3 से 5 नंबर रहते हैं यूपीएससी में क्वालिफाई करने के लिए, यही असल में नेशनल लेवल के कंपटीशन में के स्टूडेंट से आपका कंपटीशन होता है। तो आप यहाँ एक एक नंबर के लिए आपको बहुत जद्दोजहद करना पड़ती है, और यहाँ आके हमारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं कि भाई मेरे 3 अटेम्प्ट हो गए, मेरे 4 अटेम्प्ट हो गए, मैं 2 नंबर से रह जा रहा। असल में ये आखिरी जो स्टेप रहता है, क्योंकि नेशनल लेवल के कंपटीशन में आ जाते हैं आप, तो मुकाबला सख्त होने की वजह से अगर आप यहाँ और एक आधी साल टिक गए तो समझना आप क्वालिफाई हो जाते हैं। और यहाँ अगर आपकी किसी ने हिम्मत अफजाई नहीं किया, या किसी ने कोई आपको एक्सपर्ट ने आपको बताया नहीं, तो फिर आप हिम्मत हार देते हैं, छोड़ देते हैं इस सिलसिले को। तो पेरेंट्स से, स्टूडेंट से मेरी गुजारिश है कि जब भी आप कट ऑफ के करीब जाते हैं, और ये आम तौर के ऊपर दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट में आप कट ऑफ के नज़दीक पहुंचते हैं, इससे पहले बहुत कम ऐसा होता है कि कोई बंदा पहले अटेम्प्ट में निकल जाए। जैसा हमारे पास अंसार शेख का एक मिसाल दी जा सकती है कि अंसार शेख पहले अटेम्प्ट में ही निकल गया था, जो अभी भी रिकॉर्ड है। 21 साल की उम्र में उन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया, आईएएस कैडर मिला उनको, आईएएस रैंक आया था उनका, और वो अभी वेस्ट बंगाल में सर्विस के ऊपर है। लेकिन अंसार शेख से जब मेरी मुलाकात हुई, अंसार शेख के साथ बैठकर जब हमने प्लानिंग की कि हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए, क्या प्लानिंग करना चाहिए, तो अंसार शेख ने उसकी खुद की स्टोरी जो बताया वो कुछ इस तरह थी कि भाई वो 11 से ही उसने जहन बना लिया था कि मुझे यूपीएससी करना है। तो लोग ये समझते हैं कि अंसार शेख तो पहले अटेम्प्ट में 21 साल भी निकल गया था, लेकिन अगर हम देखते हैं अंसार शेख की स्टडी, तो अंसार शेख ने 11, 12, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो 5 साल मेहनत की जब जाके पहले अटेम्प्ट में निकला है। तो जो बच्चे अभी 12th का रिजल्ट आया है एक दिन पहले, और भी जो बच्चे 10th में हैं या 12th में हैं या अभी फर्स्ट ईयर में हैं, उनको चाहिए कि वो अंसार शेख की प्लानिंग से चले, ताकि जितनी कम उम्र में वो यूपीएससी की तैयारी करने यूपीएससी में आएगा, उतना जल्दी उसका रिजल्ट आएगा। लेकिन हमारे पास आमतौर पर ये होता है कि बच्चे ग्रेजुएट भी हो जाते हैं, अवेयरनेस की कमी की वजह से, सही गाइडेंस नहीं होने की वजह से। यहाँ पर जहाँ भी वो रहते हैं उनके पास अगर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं रहती हैं, तो फिर बच्चे क्या करते हैं, नेट से, यूट्यूब से, मैगजीन पढ़ के, न्यूज़पेपर पढ़ के कोशिश करते हैं कि वो यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ले। ये मुमकिन नहीं होता है। आपको एक अच्छा कोचिंग सेंटर, एक अवेयरनेस सेंटर ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, ताकि आपको सिस्टम समझ में आए कि यूपीएससी किस तरह किया जा सकता है। यूपीएससी करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है, आपको सब्र के साथ साथ टाइम टेबल। तो टाइम टेबल में आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करना होती है, जो लगभग, अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, शुरुआत में इंडियन एक्सप्रेस या टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, या अगर कोई लोकल इंग्लिश पेपर निकलता है या कोई और जबान के अंदर कोई लोकल अच्छा पेपर निकलता है, तो उसकी स्टडी कीजिए, उसको आप पूरा पढ़िए, लगभग 3-4 घंटे लगते हैं। फिर उसके बाद आपको एनसीईआरटीज पढ़ना पड़ती है। एनसीईआरटीज जो है 6 से 12 तक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, और इसके अलावा सोशियोलॉजी के, ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। यूपीएससी के स्कोरिंग सब्जेक्ट की मैं अगर बात करूं, तो यूपीएससी के स्कोरिंग सब्जेक्ट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और करंट अफेयर, ये बहुत पढ़ा। इसके कम से कम 70 से 75, 70 to 75 क्वेश्चन ये 5 सब्जेक्ट में से आते हैं। और हमारे बच्चे इसके अंदर खास तौर से न्यूज़पेपर की रीडिंग नहीं करते हैं, या उसको समझ के नहीं पढ़ते हैं, या उसको किसी सीनियर से उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तो 30% क्वेश्चन जो इसमें से आते हैं उसमें मार खा जाते हैं। और अक्सर बच्चों को जो मैंने देखा है अपने पिछले 10 साल की कारकर्दगी में, कि वो एनसीईआरटी पढ़ने के बजाय मोटी मोटी बुक्स प्रेफर करते हैं। कोई लक्ष्मीकांत की पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी पढ़ता है, कोई माजिद हुसैन की ज्योग्राफी पढ़ता है, कोई अग्रवाल साहब की जो है तो बुक पढ़ता है। तो ये असल में ये तरीका जो है आपको एक तरीके से कंफ्यूज कर देता है। जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा, अगर आपका बेस मजबूत नहीं होता है, तो आप प्री बहुत मुमकिन है कि निकाल लें, लेकिन मेंस के लिए आपको बहुत मुश्किल आती है। अक्सर बच्चों को मैंने देखा है कि वो खासतौर से मेडिकल की, इंजीनियरिंग के जो बच्चे रहते हैं, वो प्री जो है तो निकाल लेते हैं, लेकिन वो मेंस के अंदर जाके अटक जाते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि पहले हम न्यूज़पेपर रीडिंग करें, न्यूज़पेपर रीडिंग के बाद एनसीईआरटीज के ऊपर तवज्जो दें। एनसीईआरटीज को 6 to 12 तक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट वगैरह जो है, ये कम से कम एक एक बुक हो, हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो, कम से कम 20, 25, 30 बार इसको कर लें। बार बार इसकी रीडिंग करें। कि जब तक बार बार रीडिंग करते नहीं रहेंगे, जब तक आपके टॉप ऑफ द टंग नहीं हो जाएगी एक एक सब्जेक्ट या एक एक चैप्टर, आप यूपीएससी के लिए बहुत मुश्किल जाएगी। देखो यूपीएससी के लिए कहते हैं जितने भी
पिछले सालों में जो स्टूडेंट यूपीएससी क्वालिफाई हुए हैं, तो 2015 में जो 10 टॉप 10 स्टूडेंट थे उसके अंदर 5 लड़कियां थी। तो मैंने उनका जब इंटरव्यू पढ़ा तो उसमें एक लड़की ने कहा था कि मैंने यूपीएससी जो क्वालिफाई किया है वो एनसीईआरटी पढ़ के क्वालिफाई किया। तो एक तरह से यूपीएससी के लिए न्यूज़पेपर और एनसीईआरटी यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए आइडियल तरीका है। उसके बजाय हमारे बच्चे ये करते हैं कि जब रेफरेंस बुक पढ़ते हैं तो बहुत सारे बच्चों को तो मैंने ऐसे देखा है कि वो लक्ष्मीकांत की जो इंडियन पॉलिटी होती है उसके नोट्स बनाते हैं, जबकि लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी खुद नोट्स है। तो नोट्स के नोट्स आप बनाएंगे तो आपको उतना फायदा नहीं होने वाला। दूसरी चीज, कई चीजें ऐसी आती है इसके अंदर कि एनसीईआरटी के बजाय हमारे बच्चे जब रेफरेंस बुक पढ़ते हैं तो किसी से उसके बारे में अगर कोई पूछना चाहे तो वो पूछते नहीं है, बल्कि वो ये सोचते हैं कि हम इसको पढ़ लेंगे रट लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, इससे नुकसान भी होता है और बार बार फेल होने से आपको जो आपका कॉन्फिडेंस रहता है वो डाउन हो जाता है। तो यूपीएससी का पैटर्न्स पहले समझ, जो नए बच्चे हैं मैं उनको अपना यूपीएससी का पैटर्न समझा देता हूँ पहले। उसमें प्री के बाद आपको क्वालिफाई होने के लिए क्वालिफाई, जब आप मेंस के लिए आप क्वालिफाई होते हैं तो ऑलमोस्ट मान लीजिए अगर 480 स्टूडेंट ने, अगर 4,80,000 स्टूडेंट ने यूपीएससी का एग्जाम दिया है और उस साल जो है तो यूपीएससी का कोटा जो है सीट का वो 900 है या 1,000 है, तो मुश्किल से 17 या 16,000 बच्चे मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं। और टॉप ऐसा आता है कि इतने बच्चे बैठने के बाद भी 15-16 हजार बच्चे क्वालिफाई होते हैं। अब ये 15-16 हजार जो बच्चे रहते हैं क्वालिफाई होने के, इनको मेंस एग्जाम जो देना रहता है, तो मेंस का पैटर्न समझ लीजिए। देखिए मेंस के अंदर पहला ये होता है कि आपको मेंस में 9 सब्जेक्ट होते हैं, इसमें से आपको एक इंग्लिश का और एक इंडियन लैंग्वेज का एक क्वालिफाइंग पेपर होता है। पहले ये दोनों पेपर आपको देना पड़ते हैं, इसके मार्क्स काउंट नहीं होते, इसके मार्क्स आपके टोटल में काउंट नहीं होते हैं। फिर इसके बाद एस्से का नंबर आता है, एस्से आपको लिखना पड़ता है जो 250 मार्क्स का रहता है। फिर एस्से के बाद जीएस 1, 2, 3, 4 ये चारों सब्जेक्ट जो चारों पेपर होते हैं इनके भी 250 मार्क्स होते हैं, तो ऐसे ये 1250 मार्क्स हो गए। फिर इसके बाद में ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं 250 के मार्क्स, 250 मार्क्स, ये 500 हो गए। तो ऐसा अगर देखा जाए हमारा, तो ये इसके अंदर 1750 मार्क्स हमको रिटर्न में मिलते हैं। रिटर्न में इसकी एक और खास बात ये है कि यूपीएससी के क्वालिफाइंग पेपर जो 2 रहते हैं, एक इंग्लिश का और एक इंडियन लैंग्वेज का, अगर आप ये क्वालिफाई नहीं होते हैं, पहले यही पेपर चेक होते हैं आपके। अगर आप क्वालिफाई नहीं होते हैं तो आपके दूसरे पेपर चेक ही नहीं होते हैं, आपको एक रेड कार्ड आ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आप क्वालिफाइंग पेपर आप पास नहीं हो सके, क्वालिफाई नहीं कर सके, इसलिए आगे दूसरे पेपर आपके चेक ही नहीं किया जाएगा। क्योंकि जब क्वालिफाइंग पेपर ही आप नहीं निकाल सके तो यूपीएससी सोचता है बाकी पेपर चेक करके क्यों टाइम वेस्ट करें। तो इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि यूपीएससी के कॉलेज जो इंग्लिश का एक पेपर होता है जिसका लेवल यूपीएससी खुद कहता है इंग्लिश का कि वो बहुत मुश्किल 10th लेवल की इंग्लिश होती है। और जो उर्दू मीडियम के बच्चे होते हैं वो बहुत खौफ खाते हैं इससे, ये मुश्किल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, उसका लेवल 10th लेवल की इंग्लिश ही होती है, जो आप थोड़ी सी मेहनत से और डेली स्टडी करने के बाद आप आराम से उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आपको जीएस 1, 2, 3, 4 करने के बाद आपको ऑप्शनल के 2 पेपर करना है, इससे का करना है, ऐसे 1750 नंबर आपको मिलते हैं। ये रिटर्न में आपको मिल जाते हैं। अगर रिटर्न के अंदर आप 1750 का 45% भी ले ले तो समझ लीजिए आपको इंटरव्यू में आसानी हो जाएगी। हमेशा ध्यान में रखिए, आपको यूपीएससी का मेंस अगर क्वालिफाई करना है या इंटरव्यू की आसानी पैदा करना है तो जो कट ऑफ होता है मेंस का उसमें कम से कम 70 से 80 मार्क्स आप ज्यादा ले लेते हैं तो इंटरव्यू आपको आसान जाएगा। मेंस के बाद जब इंटरव्यू के लिए 17,000 16,000 जो बच्चे मेंस का एग्जाम देते हैं तो इंटरव्यू के लिए जो है तो क्वालिफाई 2700 या 2600 बच्चे होते हैं, क्योंकि सीट 900 अगर है तो 2700 होंगे या 2750 होंगे। अब ये होता है कि इसमें से जो है तो आपको 900 बच्चे सेलेक्ट होंगे। इंटरव्यू जो रहता है वो 270 मार्क्स का रहता है और 270 मार्क्स के अंदर आपको बमुश्किल 22 से 25 मिनट के दरमियान में आपका इंटरव्यू हो जाता है। तो इंटरव्यू के लिए जो आपको तैयारी करनी है, अगर आप क्वालिफाई होते हैं इंटरव्यू के लिए, तो बहुत सारे एनजीओ हैं दिल्ली के अंदर और भी बड़े बड़े सिटीज़ में जो आपको मॉक इंटरव्यू करवाते हैं। कुछ प्रोफेशनल होते हैं, कुछ जो है तो एनजीओ ऐसे रहते हैं जो फ्री में मॉक इंटरव्यू करवाते हैं। तो आपने अगर 3 से 5 जगह मॉक इंटरव्यू दे दिया है और आपने अच्छी तैयारी की है तो समझना आपके लिए इंटरव्यू आसान जाएगा। इंटरव्यू को आसान अगर बनाना है तो मेंस में आप पहले नंबर अच्छे ले लीजिए।
मेंस में अगर आप 50% तक पहुंच जाते हैं, नंबर 1750 का 50% अगर आप ले लेते हैं तो आपको इंटरव्यू मुश्किल नहीं जाएगा। अभी जो ऑल इंडिया टॉपर रही है, अभी जो पिछले 2 हफ्ते पहले रिजल्ट आया है, देखिए उसका मेंस का रिजल्ट बहुत अच्छा था। उसने 950 के करीब कुछ नंबर ली थी, उसको बहुत आसान गया इंटरव्यू। इंटरव्यू के अंदर उसके नंबर कम थे, लेकिन मेंस में उसने लेने से उसका लगभग 54 पॉइंट समथिंग रिजल्ट आया है। तो यूपीएससी में 54 या 50 के क्रॉस करना मतलब टॉप 10 में आना रहता है। तो ये भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका आपका मेंस अच्छा गया, आप 60-70 नंबर आपने ज़्यादा ले लिए हैं, तो बआसानी इंटरव्यू पास हो सकते हैं आप। और इंटरव्यू का तो आपको पता ही होगा कि इंटरव्यू के लिए आपके आपके सामने जो इंटरव्यू में जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं, जो पर्सनैलिटी इंटरव्यू टेस्ट होता है आपका, वो ज़्यादातर आपकी बॉडी लैंग्वेज पे तवज्जो देते हैं, आप किस तरीके के जवाब देते हैं, जवाब सही देते हैं या गलत दे देते हैं, इस पर तवज्जो दी जाती है। अगर आपने यहाँ ज़रा सा भी घबराहट का मुजाहरा किया, ज़रा सा भी परेशान हुए आप, तो बहुत मुमकिन है कि आप इस एग्ज़ाम में, इंटरव्यू के एग्ज़ाम में कम मार्क्स ले सकें। तो इसकी तैयारी के लिए जो वक्त मिलता है 1.5 से 2 महीने का, वो बहुत आसानी से आप उससे कामयाबी, उसको तैयारी करके कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इंटरव्यू के बाद तो फिर असल जो आगे का जो मरहला होता है, सिलेक्शन के बाद आपको जो रैंक मिलता है, रैंक के हिसाब से आपको पोस्ट मिलती है। फॉर एग्जांपल अभी जो रिजल्ट आया था तो इसमें 180 के करीब सीट आईएएस की थी, जिसमें लगभग 50 सीट्स ओबीसी के लिए थी, 18 सीट जो है तो ईडब्ल्यूएस के लिए थी, और 100 के करीब सीट जो है, या 100-120 के करीब सीट ओपन के लिए थी। उसके बाद पहला रैंक जो आपको 1 से 180 जो आएगा आईएएस था आपके, उसके बाद आईपीएस का आया, फिर उसके बाद आईएफएस का आया, फिर उसके बाद जो है तो ग्रुप ए और ग्रुप बी में आपको चांस लगता है। तो पहले 3 जो रहते हैं रैंक, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर स्टूडेंट इसी के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन प्लानिंग अगर अच्छी करे तो ये मिल जाता है इसके अंदर चांस। इसके अलावा हमारे पास जो सबसे बड़ी तकलीफ है आज के नौजवानों की और सरपरस्तों की, जो जो इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे बच्चे मैक्सिमम टाइम रात को जाग के गुजारते हैं। अगर वो जागते हैं रात को, देर रात तक गुजारते हैं, दिन में देर तक सोते रहते हैं, तो समझना वो यूपीएससी के तो काम के ही नहीं है। इससे जो असर पड़ता है वो ये होता है कि बच्चे बैठने के बाद भी 4-5 अटेम्प्ट के बाद यूपीएससी क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो लोग ये समझते हैं कि देखिए कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो रही है। नाइंसाफी अगर होती तो सलमान शेख पहले अटेम्प्ट में पास नहीं होता। शेख जैब जो अहमदनगर से ताल्लुक रखते हैं, पिछले 5 अटेम्प्ट के अंदर 3 बार क्वालिफाई हुए यूपीएससी। जैब जो है तो जिन्होंने 5 या 6 बार अटेम्प्ट दिया है, लेकिन 3 बार यूपीएससी क्वालिफाई हुए। 2000 शायद 17-18 में हुए, फिर उसके बाद 19 में हुए, या एक बीच में गैप पड़ गया उनका रहा, फिर हुए। तो पहले उनका रैंक 500 के ऊपर आया था, उन्होंने इंप्रूव किया, फिर 155 आ गया या 154 आया, अब उनका 496 आया है। तो एक बंदा जो ये एग्जाम को 3 बार क्वालिफाई कर सकता है और एक बंदा जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल सकता है, तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें तासुब की कहीं गुंजाइश नहीं है। ये डर खौफ जो एक नाइंसाफी होंगी, मुश्किल है, महंगा है, तो इस सरपरस्तों को और स्टूडेंट को ये जहन से निकाल देना चाहिए। ये एग्ज़ाम मुश्किल भी नहीं है, महंगा भी नहीं है, और तासुब भी नहीं होता है। बस सिस्टम के हिसाब से, बस प्लानिंग के हिसाब से आप करते जाए तो बहुत आसानी से आप ये एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो इस वक्त जो जो रिजल्ट पिछले इसका आया, जो 25 ही बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, तो ये ऐसी कोई मायूस करने वाली बात नहीं है। एक्चुअली हमारा पास जो है मुस्लिम्स का जो क्रीम है सोसाइटी का, जो बेहतरीन ज़हीन बच्चे होते हैं, वो असल में मेडिकल एग्ज़ाम की तैयारी में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्रीम जो है तो हमको यूपीएससी के लिए मिल नहीं पाता है। मैं अगर मिसाल देना चाहूँ, ये साल जो नीट के एग्ज़ाम में बच्चे बैठ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से, तो वो 18,72,000 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं नीट का। अगर हम इसमें 10% या 12% भी पकड़ लेते हैं, हम 8% भी मुस्लिम बच्चे पकड़ लेते तो ये लगभग 1.5 लाख होते हैं। तो 1.5 लाख बच्चे नीट का एग्ज़ाम देते हैं कि वो एमबीबीएस की सीट हासिल करें, और वहीं पर सिर्फ 4,000 बच्चे देते हैं एग्ज़ाम की वो यूपीएससी क्वालिफाई करें। तो ये जो फ़र्क है, ये जो हमारा क्रीम एक तरफ चला जा रहा है, उसकी वजह से भी हमारे पास रिजल्ट हमारा बहुत कम आता है। और वो जो बच्चे नीट की तैयारी करने के बाद 2-3 साल के बाद जब नीट क्वालिफाई नहीं होते हैं, जब वो पलट के यूपीएससी की तरफ आते हैं, तो बहुत ज़हनी तौर पर थक जाते हैं, तो उनसे भी रिजल्ट की उम्मीद बहुत कम होती है।
इसके अलावा जो दूसरी बात जो रहती है हमारे पास कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं या उनके पेरेंट्स हैं, उनके अंदर इस एग्ज़ाम के ताल्लुक से जो संजीदगी चाहिए उसकी कमी होने की वजह से बार बार हमारा रिजल्ट कम आते जाता है। और जब रिजल्ट कम आएगा तो आने वाले बच्चों को फिर पता चलेगा कि ये तो हमारे पास नाइंसाफ़ी हो रही है। ऐसा नहीं है, नाइंसाफ़ी नहीं। मैं आपको एक मिसाल दूंगा। पेरेंट्स के लिए ख़ास तौर से ये बात जहन में रखनी चाहिए कि पेरेंट्स जब भी अपने बच्चों को यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं तो उस बात की उनको जहन में रहना चाहिए बच्चों की कि बच्चा, हमारा जो बच्चा पढ़ता है, जहाँ भी तैयारी करता है, क्या वो बराबर रेगुलर क्लास को जाता है, क्या वो घर पे आके रिवीजन करता है। अगर वो रिवीजन नहीं करता तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। रिवीजन का तो बहुत, जो आज आपको क्लास में लेक्चर में पढ़ाया गया है वो उसको आप रिवीजन कर लीजिए, बहुत आसानी होती है। आमतौर पे ये नहीं होता है। दूसरा ये होता है कि जब, जैसा कि मैं एक मिसाल देना चाहूँगा अपनी मेरी, कि मेरे पास जो, हमारे पास जो शेख सलमान पटेल जो चौथे अट्टे में क्वालिफाई हुए थे, नूर सिद्दीकी जो 5वें अट्टे में क्वालिफाई हुए थे, ये दोनों जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जब स्टडी कर रहे थे तो 4 अटेम्प्ट के बाद, यानी लगभग 4 साल और 5 साल की मेहनत के बाद भी, जब ये 2 बार इन्होंने मेंस लिखा लेकिन इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं हुए, तो इनको लगा कि अब बहुत मुश्किल है, आगे हम अब नहीं पढ़ सकते, इसको छोड़ देना चाहिए। तो ये दोनों की जब मेरे से मशवरा चाहा इन्होंने, तो मैंने इनको कहा कि भाई आप छोड़ सकते हैं, आप आज़ाद ये करने के लिए, लेकिन मैं एक मशवरा दूंगा आपको, जो सरपरस्तों से मेरी गुजारिश है कि इसको गौर से सुने या नोट करके रख लें। मैंने उनसे कहा था कि देखिए आप 4 साल या 5 साल से इसमें लगे हुए हैं, लगभग 5.5 साल हो गए आप दोनों को। ऐसा कह सकते हैं हम कि आपने जो दरिया वो आपको क्रॉस करना था, आप उसको 80-85% क्रॉस कर चुके हैं। आप एक 10-15% जो बचा हुआ है उसके लिए आप हिम्मत हार जा रहे हैं। या आपको किसी पहाड़ पे चढ़ना है जो, अगर जिसकी बुलंदी अगर 1000 फीट है, तो आप 800-850 फीट चढ़ चुके हैं। आप वापस आने के बजाय आप आगे जाने की कोशिश कीजिए। और मैंने उनसे ये कहा कि आप एक काम कीजिए, आप अभी छोड़िए मत। आपका भले ही 5वां अटेम्प्ट है, लेकिन आप जब तक के आपका रिजल्ट नहीं आता है, आपके मार्क्स आपको पता नहीं चलते हैं, आप इसको छोड़िए मत, स्टडी कंटिन्यू कीजिए। तो यूपीएससी का तरीका ये होता है कि यूपीएससी प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों के मार्क्स फाइनल रिजल्ट के हफ्ते 10 दिन के बाद डिक्लेयर करता है। यानी आपको प्री में कितने मिले, मेंस में कितने मिले और इंटरव्यू कितने मिले, ये मार्क्स आपको कब पता चलता है? यूपीएससी के फाइनल रिजल्ट आ जाता है, रैंक वाइज बच्चों को सब पता चल जाता है। तो उसके 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन के बाद आपको टोटल मार्क्स डिक्लेयर करता है। तो जब नूर और सलमान ने ये इरादा जाहिर किया था कि भाई अब हम थक गए हैं, अब हमसे मुश्किल जा रहा है हमारे को, तो मैंने कहा आप जब तक आपके मार्क्स ना देख ले, आप छोड़िए मत, उसको स्टडी कीजिए। दोनों ने मेरी बात को सुन लिया, स्टडी में लगे रहे। जब यूपीएससी ने मार्क्स डिक्लेयर की तो पता चला नू को 20 नंबर कम पड़ गए थे यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए चौथे अटेम्प्ट में, और सलमान को 18 नंबर कम पड़े थे। अगर ये उस वक्त मुझसे मशवरा नहीं करते या मेरे बात की उनकी बात मेरे इल्म में नहीं आती और मैं उनको ये गाइड नहीं करता, तो वो छोड़ चुके होते। और छोड़ने के बाद क्या होता, हमें रिजल्ट नहीं मिलता। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बात को सुना, समझा। उन्होंने जैसे ही देखा कि भाई बच्चे, दूसरे स्टूडेंट तो उनके साथ जो स्टडी करते थे, किसी को 100 नंबर कम पड़े, किसी को 80, किसी को 70, हम तो बहुत करीब पहुंच गए थे। नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर उन्होंने प्री, मेंस, इंटरव्यू एक ही साथ क्वालिफाई कर लिया। और दोनों ने जो मेहनत की है उसका एक बहुत बड़ा एक ये फायदा हुआ कि वो दोनों, ये मैं बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि यूपीएससी में जो आप स्टडी करते हैं, आपके रूममेट रहते हैं, क्लासमेट रहते हैं, वो एक दूसरे की मदद करना चाहिए। नूर सलमान ने जब एक दूसरे की मदद की तो ये एक रिकॉर्ड है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में, अभी भी चर्चे की बात बना हुआ ये, कि दोनों को, जब दोनों ने एक ही रूम में 3-3 साल तक स्टडी की, दोनों ने पेपर दे के आए, तो 850 मार्क्स सलमान को मिले और मेंस के अंदर, और 851 नू को मिले, सिर्फ 1 नंबर ज्यादा मिला। अब इंटरव्यू का जब मरहला आया दोनों का, तो दोनों ने खूब अच्छी तरह तैयारी की थी। इंटरव्यू आया, जब रिजल्ट आया तो दोनों को 170 मार्क्स मिले। तो ये एक दूसरे को, जब इनसे पूछा गया कि भाई ये क्या है, सिर्फ 1 नंबर के फर्क से आप दोनों क्वालिफाई हुए, तो दोनों का ये कहना था कि हमने कोई चीज छुपाया नहीं,
हम एक दूसरे को बताते रहते थे कि मैं आज क्या स्टडी कर रहा हूँ, मैं आज क्या पढ़ रहा हूँ। उसके वजह से दोनों को ये फायदा हुआ कि एक की कमजोरी दूसरे ने पहचान लिया, पहले की कमजोरी दूसरे ने पहचान लिया। इस तरीके से एक दूसरे की हेल्प करने से दोनों एक साथ क्वालिफाई हुए और दोनों के मार्क्स इतने कि 171 एक साथ दोनों। हालांकि इंटरव्यू के अंदर दोनों के 20 दिन का गैप था, दोनों का पैनल अलग था, लेकिन एक दूसरे की मदद करने का ये फायदा हुआ। आज दोनों भी IRS हैं। तो जो बच्चे, जो पेरेंट्स इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो एक दूसरे की मदद करें, मदद से फायदा ही होने वाला है। इसके अलावा अक्सर ये होता है कि जो बच्चे हैं वो 2-3 साल तक UPSC का पैटर्न ही नहीं समझ सकते। तो उनके लिए मेरा ये मशवरा है खास तौर से कि पहले आप UPSC का बेसिक समझ लीजिए, फाउंडेशन समझ लीजिए। UPSC का सिलेबस समझने के लिए ऑलमोस्ट 15 से 18 महीने लगते हैं, और जिसने फाउंडेशन कर लिया, ये फाउंडेशन मजबूत कर लिया है, उसको आगे मुश्किल नहीं जाती। क्योंकि सिलेबस जब समझता है तो आपको स्टडी बहुत आसान जाती है। आपको सिलेबस नहीं समझता है और आप बगैर कोचिंग के, बगैर गाइडेंस के, बगैर किसी ऐसे तैयारी के चले जाते हैं, तो ये तो ऐसा ही होता है कि जैसा आप एक मैदान में, ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे हैं और दोनों तरफ गोल पोस्ट नहीं है लगा हुआ, यानी आपके सामने गोल ही नहीं है। जब आपके सामने गोल ही नहीं रहता है तो आप कहाँ करेंगे, गोल किधर मारेंगे। तो मेहरबानी कीजिए, जो पेरेंट्स है या स्टूडेंट है, वो इस बात को नज़र में रखिए कि आपको प्लानिंग के साथ तैयारी करनी है। प्लानिंग के अंदर नंबर 1 पे आता है न्यूज़पेपर पढ़ना, फिर NCERT पढ़ना, फिर एस्से राइटिंग का प्रैक्टिस करना, फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना, टेस्ट सीरीज करना। ये जब जाएगा आपको, तो ये सबको करने के लिए कम से कम 2 अटेम्प्ट चले जाते हैं। तो बेहतर है कि पहले अच्छी तरह तैयारी कर लीजिए, सिस्टम को समझ लीजिए, बेसिक नॉलेज ले लीजिए, सिलेबस को समझ लीजिए, फिर उसके बाद पहला अटेम्प्ट दीजिए। भले ही आपकी उम्र 24-25 की हो जाती है, आप तैयारी से जाएंगे NCERT से, इससे उसके बाद आप रेफरेंस बुक्स में जाएंगे, फिर कोई कोचिंग अच्छे से कोचिंग सेंटर से आप कोचिंग लेंगे, तो बहुत होता है, बहुत हद तक ये बच्चे दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में निकल जाते हैं। लेकिन इसकी शर्त ये है कि आप जितनी जल्दी आएंगे, अगर फर्स्ट ईयर से आ गए आप, तो समझना ग्रेजुएशन के बाद आप फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट के अंदर आराम से UPSC क्वालिफाई कर सकते हैं। हमारे पास अक्सर बच्चे 25-26 साल में आते हैं, उनको मोल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये भी एक वजह है जो हमारा परसेंटेज हमारे को जो है, तो हमारे बच्चे कम क्वालिफाई होते हैं। दूसरा ये है कि एक बात जो बहुत गौर करने की है, वो ये है कि मैं एक मिसाल देना चाहूँगा जो खास तौर से पेरेंट्स, NGOs और जो भी इस फील्ड में मुस्लिम स्टूडेंट का रिजल्ट अगर अच्छा देखना चाहते हैं, तो मैं उनको एक मिसाल देना चाहूँगा। देखिए, दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए जो इल्म चाहिए, वो मेरी नज़र में UPSC में है। दुनिया का, किसी मुल्क का नहीं, किसी इंडस्ट्रीज का नहीं, किसी का नहीं। अगर दुनिया का निज़ाम चलाने, हम मान लीजिए हमारे मुल्क का जो निज़ाम चलाना है, तो उसको कौन चला रहा है? ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं उसको। पॉलिटिशियंस, डॉक्टर, इंजीनियर और फिल्म स्टार तो नहीं चला रहे। या आप ब्यूरोक्रेसी में जब तक आएंगे नहीं, वहाँ अपना परफॉर्मेंस बनाएंगे नहीं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किसी मुल्क का निज़ाम किस तरह काम करता है। तो UPSC के अंदर अगर जब आप आना चाहते हैं, तो ये समझ के आइए कि दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए जो इल्म चाहिए, वो आपको UPSC से मिल रहा है। और ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है कि आप UPSC में क्वालिफाई हो गए, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इन केस अगर खुदा ना खास्ता आप UPSC में 3, 4, 5, 6 अटेम्प्ट के बाद भी क्वालिफाई नहीं होते हैं, तो भी आपके पास इतना तो इल्म आ जाता है कि आप किसी भी फील्ड में जाए, किसी भी फील्ड में जाए आप उस फील्ड में हमेशा नुमाया टॉप पे नजर आएंगे। तो UPSC में किसी भी तरीके से नुकसान ही नहीं होता है। एक जो बात मैं आपके सामने एक मिसाल देना चाहूँगा, जो ख़ास तौर से आप जहन में रखिए इस बात को। जो हमारा परफॉर्मेंस UPSC में जो 3, 5 और इसी के दरमियान में घूम रहा है परसेंटेज हमारा, तो ये क्यों नहीं हो रहा है, आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है पिछले बरसों से, उसकी एक जो वजह है मैं आपको समझा दूंगा, या आप एक मिसाल दे के बताना चाहूँगा मैं। इसके बाद हम आगे बढ़ के क्वेश्चन आंसर सेशन ले सकते हैं, या जो भी होगा वो देखते हैं। कि एक मिसाल मैं इस तरह देना चाहूँगा आप सबको कि सुनिए, गौर से सुनिए इसको, कि हम एक हॉल में बैठे हुए हैं। एक बहुत बड़ा हॉल है जो रोशनियों से जगमग कर रहा है। उसमें सैकड़ों बल्ब लगे हुए, 200, 300, 4 बल्ब लगे हुए, बहुत अच्छी तरह रोशन है, वो जगमगा रहा है रोशनी से। अगर उसमें 10-20 बल्ब और बढ़ा दे तो रोशनी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। या हमको समझ में भी नहीं आएगा कि 10-20 बल्ब यहाँ एक्स्ट्रा और लगा दिए गए, या उसमें से 20-25 बल्ब कम कर दे तो भी हमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, रोशनी ऐसी नजर आएगी, बल्कि हमारा ध्यान भी नहीं जाएगा कि 10-20 बल्ब यहाँ कम लगे हैं।
मतलब वो रोशनी उतनी, ऐसा लग रहा है कि भरपूर रोशनी है साहब। अब वो जो बल्ब है वो हॉल में जिससे हॉल जगमगा रहा है रोशनी से, वो बल्ब यूँ समझ लीजिए कि उसमें 20 बल्ब MBBS है, 20 बल्ब जो है 10 जो है तो MD है, MS है, 10-15 बल्ब उसके अंदर इंजीनियर है, कोई हार्डवेयर इंजीनियर है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो कंप्यूटर इंजीनियर है, कोई और किसी किस्म का इंजीनियर है। उसके बाद 10 बल्ब ऐसे जो बड़े अच्छे फिल्म स्टार हैं, फिर उसके बाद कुछ बल्ब ऐसे जो बड़े बिजनेसमैन है, स्पोर्ट्समैन है, पॉलिटिशियंस है, कुछ सोशल वर्कर है। इससे हाल जगमगा रहा है। अब गौर कीजिए मेरी इस बात के ऊपर कि ये तो फुल जगमगाहट वाला होगा, रोशनी से भरपूर हाल है। अब एक तरफ दूसरा हॉल है जो भरपूर अंधेरे में है, बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ हॉल है, वो UPSC का हॉल है। अब आप गौर कीजिए कि हमको किस हॉल में रोशनी का चिराग जलाना है, और वो हमारा हॉल है। क्योंकि UPSC को, हमको UPSC की जरूरत नहीं है, लेकिन UPSC को हमारी जरूरत है। तो जब तक हम वो हॉल जिसमें रोशनी नहीं हो रही है, जो डूबा हुआ है रोशनी अंधेरे में, वो UPSC का हॉल है, हम वहां पर जब तक जाके चिराग नहीं जलाएंगे, बल्ब नहीं जलाएंगे, हमारा जो है तो ये मसाइल का अंबार, ये मसाइल का ढेर इसी रहेगा हमारे साथ। तो मेरी गुजारिश है पेरेंट्स से, स्टूडेंट से, कि वो इस तरफ भी तवज्जो दें। आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए। अमूमन ये होता है कि डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए 6 से 8 साल लग जाते हैं, और मुसलमानों की माशी हालत कुछ इस तरीके की होती है कि इससे ज़्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उनको फ़ौरन कमाई की ज़रूरत होती है। लेकिन दीगर बरादरान वतन जो है, दीगर बिरादरान वतन जो है, वो डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद UPSC करते हैं। अभी हमारे पास जो 162 जो रैंक आया है अपने मुस्तफ़ा हाशमी का हैदराबाद से, वो MD है, MBBS डॉक्टर है, जो अपने कॉलेज का टॉप रहा हुआ है। देखिए उसने मेहनत कर ली, एक एम लेके चला, तो आज वो बहुत बड़ी पोस्ट पे पहुंच गया, IPS का रैंक है उसका। यानी उसने जो पेशा इख्तियार किया था पहले, उसके मुकाबले में अब उसको खिदमत खल का बहुत वसी मैदान मिल रहा है। तो हम क्या चाह रहे हैं कि हम जो है तो एक फील्ड में इंजीनियर, डॉक्टर, लेक्चरर, बिजनेसमैन, खिलाड़ी बनने के बाद हम बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। लेकिन UPSC करने के बाद जब हम IAS, IPS, IRS बनते हैं, तो हमारे सामने एक वसी मैदान होता है खिदमत करने का, माहौल को सुधारने का भी, गंदगी दूर करने का भी, और अपने आप को और अपनी मिल्लत को ऊंचा उठाने का भी। तो वो अंधेरे वाला जो हॉल है, जहाँ पर कोई बल्ब नहीं लगा हुआ है, लेकिन एक हॉल है जिसमें भरपूर रोशनी है, तो वो अंधेरे वाले हॉल जो UPSC का है, वहाँ पर रोशनी जलाने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह अगर आप इस तरफ गौर करेंगे तो रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि क्रीम हमारा उजाले वाले हॉल में चले जा रहा है, और जो अंधेरे वाला हॉल है उसके अंदर ऐसे लोग आते हैं जो या तो माशी तौर पे कमज़ोर होते हैं, या जिनका नॉलेज बहुत कम होता है, तो वहाँ से रिजल्ट नहीं मिल पाते। तो इस बात के ऊपर भी गौर कीजिए कि हमको उजाला किस हॉल में करने का है। तो ये बात अगर आप समझ गए हैं, तो जब तक हमारा इसमें परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगा, हमारा इसमें परसेंटेज नहीं बढ़ेगा, हमारी इसमें तादाद नहीं बढ़ेगी, रिजल्ट भी 3-4% ही आता रहेगा। अब अगर गौर करने की बात यह है कि 3%, 4% भी बच्चे जो क्वालिफाई होते हैं, यानी 4,000 बैठे तो 50 क्वालिफाई हुए, 40,000 अगर बैठेंगे तो 150 क्वालिफाई होंगे। खुली सी बात है, अगर हम 4,000 बैठते हैं तो 51 क्वालिफाई होते हैं, अगर 40,000 बैठेंगे तो 150 क्वालिफाई होंगे। 150 क्वालिफाई होने का मतलब कम से कम 20% डिस्ट्रिक्ट में हमारे ऑफिसर रह सकते हैं, बड़े बड़े ओहदों के ऊपर। और करने वाली बात है। मैं यहाँ अपनी बात को खत्म करता हूँ। अब अगर आप कोई कुछ सवाल जो आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हेलो। हेलो। यस सर, सवाल तो कोई भी पोस्ट कर नहीं है ज्यादा। एक सवाल है सर, totally how many papers are of written exam? And sir, do we have mock and 10 real interview? मेंस एग्जाम में टोटल 9 पेपर होते हैं। इसमें से 2 क्वालिफाइंग होते हैं, एक इंग्लिश का और एक इंडियन लैंग्वेज का। इसके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं। 7 जो पेपर होते हैं, ऐसे ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट 1 और 2, और GS के 4 पेपर होते हैं, GS 1, 2, 3, 4। ये सब के टोटल मार्क्स अगर आप लाते हैं तो ये 1750 होते हैं। नहीं सर, और कोई सवाल नहीं है। जज़ाकल्लाहु खैरा सर फॉर
very insightful and informative session today, and for motivating the students to write the exam for UPSC. I think the students and the attendees have benefited today, and they have got the motivation to give the UPSC exam. I thank you on behalf of the panelists and also on behalf of all the attendees. Thank you. Jazakallahu khaira, sir. Thank you. Before signing off today's session, I would like to inform attendees that we have a session tomorrow on careers in defense forces, Army, Navy, Air Force, NDA. And the speaker is retired Brigadier Niamatullah Shabir Ahmad. Please do join the session with your friends and relatives and get benefited. With this, we have come to the end of the session. Hope to see you all again in tomorrow's session. Jazakallahu khaira, everyone.